Hello all. Um, this is my first video and I am very excited for this first video. The topic is also very intriguing and let me first introduce myself before I start the video today. My name is Solmanti and I work in a social sector, and I come across many women, many men as well, many children, many people who are wanting employment. They are looking for jobs in IT sector. I come across these people, and there is an research which we were doing, and according to that research, what we have found out is mostly the people who are unemployed yet, and those they are youth, and especially if the youth is women, they are going through a very hard situation. So there are some people amongst us who are not only battling one battle but two simultaneously. One, the COVID-19 situation which is going on, the virus which we all are fighting against. The second battle they are battling simultaneously is the abuse. So, as we all know that most of the abuses happen at home. So these people who are vulnerable, the women, the children, the youth, the unemployed, those they are at home. So they are basically living and they are locked with their abusers. So just imagine the situation. You are jumping inside a pool. Rather, you're forced to jump inside a pool full of piranhas, and you're scared that you'll be dead. And if you want to go out of that pool, there are crocodiles lurking around. So safety is a very difficult thing to imagine in this kind of situation. So those people who are vulnerable and they are locked down with their abusers, I feel that we need to know a little bit more about how they feel. So we did a research based on that how they are feeling and what kind of possibilities are there for them to come out of that situation. So we can take it out in two different perspectives. Let us take one perspective which is physical and the other one is emotional. So if someone is being hurt physically or sexually, it's an obviously it's a very big offense, and they can call. There are many helpline numbers which are nowadays on. One is, I think, National Commission for Women is there, who is looking after the situation, and they have given a number. I would let the number out in the comments here. Also, I'll tell the number. So there's this number which they have given. You can call on that number and report your problem. If it is very serious, you can report the problem. If it is not that serious, then also you can report the problem. Okay, so Meghalaya, those people who are living in Meghalaya, they can just dial 181 and call for safety. The others can dial the number given by National Commission of Women, which is 721 773572. Again, I'm repeating the same, 721 773572. So I think lockdown began on 22nd of March, and this data which we have extracted is from 26th of March till 1st of April. And in this data, there were 69 complaints till 25th of March. From 22nd of March to 25th of March, there were 69 complaints. And after that, from 26th of March to 1st of April, there were 257 complaints. So, if you all know that it's not very easy to complain, so people who are vulnerable, they firstly do not consider it as a problem. These kind of problems which are domestic,
are generally silenced 99% of the time, because they are known as the family issues, so that those are not supposed to be taken in the public. So most of the cases are not reported at all. So the numbers I'm telling you is just the tip of the iceberg. The problem is more serious because it's not been reported and they are not coming out for help. The helpline numbers for Meghalaya it's 181, for other states it's 112 and 100. For it, a special number have been given for this lockdown period from National Commission for Women, and you can WhatsApp as well as call on this number. The number is 721 3572. I'm repeating this, 721 3572. And if you do not want it to get reported, you want a personal counseling, I have a guest with me today who is Miss Monica Khatwani, who is working on this kind of sexual abuses which is happening on women nowadays, and the mentality of people who are sociopaths. So let me just introduce you to Miss Monica Khatwani, and over to you, Monica. I hope you are all doing fine and you are healthy and safe. So, child abuse. Child abuse is very typical topic when I talk about child abuse. We actually focus that what problem the child is facing. It could be emotionally, it could be physically, it could be sexually, it could be mentally. Like what sort of harassment the child is having. That comes into the child abuse. बट आजकल ये जो चाइल्ड अब्यूज की टर्म है उसे बहुत मिसयूज भी किया जा रहा है। जैसे कि अगर पेरेंट्स बच्चे को थोड़ा सा डांट देते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हमारा अब्यूज हो रहा है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि चाइल्ड अब्यूज है क्या एक्चुअली। थोड़ा सा डांटना बच्चे को इज रियली अ चाइल्ड अब्यूज, और चाइल्ड अब्यूज इज समथिंग दैट गोज बियॉन्ड डांटना। तो चाइल्ड अब्यूज जो है बेसिकली देर आर मैनी वेज द पीपल आर डूइंग चाइल्ड अब्यूज, एंड टू बी वेरी ट्रू उसमें सिर्फ पेरेंट्स इंक्लूडेड नहीं है। अदर देन पेरेंट्स देर आर मैनी पीपल हु आर डूइंग द चाइल्ड अब्यूज। सो जब हम बात करते हैं चाइल्ड अब्यूज की तो वी शुड सर्टेनली टॉक कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि ड्यूरिंग द चाइल्ड अब्यूज हाउ child should be treated or child should take care of themselves। एक child अपना टेक केयर कैसे करे जबकि वो खुद अब्यूज हो रहा है। बट हम कभी ये नहीं बोलते कि लेट्स वर्क ऑन द कल्प्रेट रादर देन द विक्टिम। चाइल्ड अब्यूज जो कर रहा है उनको एक्चुअली काउंसलिंग की जरूरत होती है रादर देन कि जो चाइल्ड अब्यूज सह रहा है। ऑफकोर्स जो सह रहा है दे आर इनटू ट्रॉमा, डिप्रेशन and they might be facing many problems। बट जो चाइल्ड अब्यूज कर रहा है वो तो सबसे बड़ा कल्प्रिट है जिसे एक्चुअली या जिसको एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि चाइल्ड अब्यूज होता क्या है या कौन करता है। इफ यू टॉक अबाउट कि पेरेंट्स, समटाइम्स क्या होता है कि पेरेंट्स जो है बच्चों को डांटते हैं। देयर इज अ वे ऑफ राइट पेरेंटिंग एंड रॉन्ग पेरेंटिंग। लोग क्या सोचते हैं कि अगर जब हम बच्चों को डांटेंगे या बच्चों को पीटेंगे तो वो बातों को समझ जाएंगे। बट होता क्या है बिल्कुल उसका अपोजिट। यहाँ तो वो बच्चा बिल्कुल ट्रॉमा में चला जाता है या डिप्रेस हो जाता है, वो अपनी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल लूज कर देता है कि आई एम नॉट वर्थ ऑफ एनीथिंग। या फिर ये होता है कि वो बच्चा बिल्कुल ही रिवोल्ट करने लग जाता है, ही और शी गोज अगेंस्ट द पर्सन हु इज, एंड उसमें क्या होता है या तो बच्चे क्रिमिनल हो जाते हैं या फिर बच्चे भाग जाते हैं। तो दोनों ही जो है दोनों ही केस में प्रॉब्लम है। तो अगर हमें बात करनी है कि चाइल्ड अब्यूज को रोका कैसे जाए तो पहले वी शुड वर्क ऑन द कल्प्रिट। पेरेंट्स का क्या होता है या जो भी हमारे घर के बड़े हैं वो क्या होता है, दे आर नॉट एट दैट मच ऑफ देयर लेवल दैट दे शुड नो कि एक बच्चे को ट्रीट कैसे किया जाए। मे बी अब पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमने तो पहले भी बच्चों को ऐसे ट्रीट किया, हमें भी ऐसे ट्रीट किया जाता था, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ राइट मेथड ऑफ ट्रीटिंग।
बट विद द चेंजिंग टाइम एवरी पर्सन शुड अंडरस्टैंड कि ज़माना बदल गया है, बच्चे भी वैसे नहीं हैं और पेरेंट्स भी वैसे नहीं हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हम सेम वे में पेरेंटिंग करेंगे, डांट पीट के बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे, तो इट इज़ लाइक समथिंग कि या तो वो रिवोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या वो बच्चों को ट्रॉमा में दे देगा। अब आपने तो चलो बच्चे को डांट दिया, बच्चे को मार लिया, जो भी कर लिया, अब आपकी मेंटल हेल्थ का क्या? यू आर ऑल्सो सफरिंग द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि अगर आप किसी भी चीज को बहुत देर तक होल्ड करके रखेंगे, एक पेन ही ले लो अपने हाथ में, उसको बहुत देर तक होल्ड करके रखेंगे, प्रॉब्लम किसको होगी? पेन पकड़ने वाले को। पेन तो उस शेप में आदत पड़ जाएगी पेन को, तो पेन कितना भी क्रश में ज्यादातर टूट जाएगा, पर दर्द आपको भी होगा। उसी तरह जो पेरेंट्स अब्यूज कर रहे हैं अपने बच्चों को सेक्सुअली, मेंटली, या इफ आई से जो हार्श पेरेंटिंग करते हैं, तकलीफ उनको सबसे ज्यादा होगी, मेंटली भी, इमोशनली भी और फिजिकली भी। सो व्हाट इज द मेथड ऑफ राइट पेरेंटिंग? राइट पेरेंटिंग इज बेसिकली ना तो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा पैम्पर करो, ना अपने बच्चे को बहुत ज्यादा मारो। ये फर्स्ट स्टेप है टू नो कि ना तो हर चीज की अति जो है पॉइजनस होती है, तो उसी तरह पॉइजनस होता है या तो ज्यादा मारना या ज्यादा प्यार करना। तो इस सबको बैलेंस बनाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे की क्या सोच है। तो राइट पेरेंटिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप बच्चे से कम्युनिकेट करो। जितना कम्युनिकेशन करोगे उतना ही बच्चे को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चा भी आपके साथ खुल के कुछ बोल सकेगा। आज के पेरेंट्स की क्या है, उनका बिलीव सिस्टम है। बिलीव सिस्टम मीन्स कि अगर हमारे टाइम में ऐसा होता तो आज के भी बच्चे ऐसे ही, हम उनको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। और हमारा बिलीफ ये है या हमारा बिलीफ ये है कि ये चीज़ गलत है तो गलत ही है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे बच्चे कितना भी कहें वो सही नहीं है। तो ये जो थॉट है, जो ये स्टॉन्च बिलीव है अपने ऊपर कि हम ही ठीक है बाकी कोई ठीक नहीं है, सबसे बड़ी गलती है ये। चाहे फिर वो चाइल्ड की हो, चाहे वो पेरेंट की हो, या कोई भी और जो कि उसका गार्जियन है, उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है एक चाइल्ड के लिए जो कि अभी सह रहा है, इट्स नॉट इजी। एंड फॉर अ पेरेंट और गार्जियन हु इज इन दिस बिलीफ सिस्टम कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, वो इतने सालों से चला रहा है, उसके लिए भी अपने थॉट को एकदम से चेंज करना इज नॉट इजी। तो इसके लिए हर चीज के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बेस्ट वे टू एक्चुअली फाइंड अ सोल्यूशन इज कम्युनिकेशन। जब एज अ चाइल्ड अगर आपको लगता है कि आपको चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, तो फर्स्ट ट्राई टू कम्युनिकेट विद द पेरेंट्स, कम्युनिकेट विथ योर पेरेंट्स और योर गार्जियन और द पर्सन हु इज ट्राइंग टू अब्यूज यू। अब डिपेंड करता है कि अब्यूज किस लेवल का है, दैट आर वी आर नॉट डिस्कसिंग बिकॉज इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहली बात है कि हमें कम्युनिकेट करना आना चाहिए, कि हमें अपनी बात को प्रेजेंट करना आना चाहिए कि क्या एक्चुअली में हम वो सुन पा रहे हैं या वो हम समझ रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स कहना चाह रहे हैं, या जो हमारे बच्चे कहना चाह रहे हैं, क्या हम उनको समझ पा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको लगता है कि आपका अब्यूज हो रहा है या आपके पेरेंट्स आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं या आपके गार्जियन आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं, हर बात पे चिल्लाते हैं, हर बात पे गुस्सा करते हैं, या एज अ पेरेंट आपको लगता है आपकी बातें बच्चे नहीं समझ रहे हैं, तो रादर देन टेकिंग अ हैंड, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। दिस इज द फर्स्ट बेटर वे, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। तो जब प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में तब आती है जब हमारे अंदर डर है कि हमारी बात को वो समझेंगे ही नहीं, या हमने पहले से ही अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग कर रखा है कि हम कुछ भी बोलेंगे वो गलत ही आएगा, या द पर्सन हैज ऑलरेडी ट्राइड अ लॉट टू कम्युनिकेट, उसके बाद भी जवाब यही आता है कि नहीं, यू आर द कल्प्रिट, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम ऐसे ही करोगे जैसा हम चाहते हैं। तो टू बी वेरी ट्रू, आप जिसको जितना मारोगे, जितना चिल्लाओगे जिसपे, वो उतना ही रिवोल्ट
स्टेट में चला जाएगा, या तो वो इंसान ट्रॉमा के स्टेट में जाएगा या वो रिवोल्ट के स्टेट में जाएगा। तो दोनों ही, अगर आप सोचते हो कि वो आपके कंट्रोल में आएगा, दोनों ही चीजें आपके लिए एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन इज नॉट गुड। सो द फर्स्ट वे इज बेटर यू शुड कम्युनिकेट। अब सेकेंड, जब आपको लगता है एज अ अब्यूजर की कम्युनिकेट करने से भी कोई चीजें सॉल्व नहीं हो रही है, अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, so there are definitely some helpline numbers where you can contact and talk to them about the child abuse. अगर आपको लगता है कि you are getting abused really, after communication you are not able to get the solution, we will share the helpline numbers where you can communicate, when you talk to your problems, talk about your problems, or you can, if you are facing some trauma, you can directly talk to psychologist, because साइकोलॉजिस्ट कभी भी आपको जनरल सोल्यूशन नहीं बताते, बिकॉज चाइल्ड अब्यूज जो है या किसी भी तरह का अब्यूज बेसिकली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेट द पर्सन इज फ्रॉम दैट ट्रॉमा। पर पहले इंक्रीज योर सेल्फ एस्टीम बाय एक्चुअली कम्युनिकेटिंग, ट्राई टू टॉक टू द पीपल। अगर लगता है आप अपनी बात किसी को नहीं बता पा रहे हो, या अपने पेरेंट्स या आपका कोई भी जो आपको लगता है कि आप अब्यूज हो रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद देम, नहीं हो, कॉन्वर्सेशन नहीं बन रहा, तो एटलीस्ट टॉक टू समवन हु कैन इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। मे बी इट इज अ साइकोलॉजिस्ट और इट कुड बी योर फ्रेंड। अगर उससे भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो डेफिनेटली देर आर सम हेल्पलाइन नंबर्स वेयर यू कैन कॉल एंड यू कैन talk about your problems. There are definitely people helping you out for that. बट फर्स्ट उसके लिए एज अ चाइल्ड अगर आप अब्यूज सह रहे हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बहुत हाई रखो। बस हाई सेल्फ एस्टीम मतलब कि आपको जिस पॉइंट पे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, पिटाई आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है या ओवर अब्यूजिव हो रहा है, या आप देयर इज अ लिमिट, यू आर नॉट एबल टू एक्चुअली हियर एनीथिंग मोर, तो सी द साइकोलॉजिस्ट और एक्चुअली ट्राई टू बी काम एंड टॉक टू द पर्सन। अगर बात करने से बात नहीं बन रही है तो प्लीज टॉक टू योर सेल्फ, राइट अ डायरी और डू समथिंग लाइक दैट कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। तो सबसे पहला है एक्सप्रेशन, कि कम्युनिकेशन से बात नहीं हो रही तो ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इधर टू योर फ्रेंड और इधर टू अ डायरी, सो दैट जो मोस्ट ऑफ द इशू है वो आपके दिमाग के अंदर ना बैठे, वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस हो, वो कहीं ना कहीं। चाइल्ड अब्यूज के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। चाइल्ड अब्यूज के रीजन ये भी हो सकते हैं कि जब पेरेंटिंग करते हैं तो दे हैव सीन द सेम एटमॉस्फेयर इन देयर फैमिली, कि अपनी फैमिली में भी उन्होंने यही देखा है कि मार के या किसी को अब्यूज करके ही काम होता है, तो दे आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। और कभी कभी ये होता है कि एक्चुअली या तो वो जो पैटर्न है वो इमिटेट होता है, या उनको लगता है कि दे हैव बीन पैम्पर्ड अ लॉट, तो इसलिए वो बिगड़ गए हैं, तो वो अपने बच्चों पे खुंदक निकालने रहते हैं। और देयर कुड बी अ फ्रस्ट्रेशन ऑफ द एल्कोहल, कि आपने एल्कोहल पी रखी है उसकी फ्रस्ट्रेशन, या आपको एल्कोहल नहीं मिल रहा है उसकी फ्रस्ट्रेशन है, तो देयर कुड बी एनी रीजन। और अब्यूज में इट्स नॉट ओनली कि एक रीजन हो सकता है, दैट कुड बी मेनी रीजंस इन्वॉल्व। तो अब्यूज करने वाले के लिए बहुत सारे रीजंस हैं अब्यूज करने के लिए, और अब्यूज सहने वाले के लिए there are different things that you can do to help yourself for a good mental health. तो एक्सप्रेस करो, कम्युनिकेट करो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ इन केस इफ यू फील देयर इज अ रियल बिग प्रॉब्लम, और इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, आपको लगता है कि आप सही हो एंड यू वांट, लाइक आई हैड अ क्वेरी फॉर अ पर्सन who wants to earn money because she is the only mother and her parents are not supporting her at all. हर हस्बैंड इज नो मोर एंड हर पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग एट ऑल। तो इस केस में क्या है, अगर घर पे खाना खिलाने वाला, अपने बच्चे को समझाने वाला, बच्चे को पेट भरने वाला कोई तो चाहिए। तो इफ यू आर अर्निंग दैट इज अप टू यू, इफ यू थिंक दैट यू आर स्ट्रांग इनफ कि आप अपने बच्चे का भी टेक केयर कर लोगे और यू कैन अर्न ऑल्सो, सो गो अहेड एंड डू इट। सो चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इट्स अप टू यू, चूजिंग बिटवीन एक्चुअली कि आपको वो सहना है या उसके अगेंस्ट जाना है, इट्स अप टू यू। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अब्यूज एक्चुअली है क्या। अगर आपको कोई डांट रहा है तो दैट इज नॉट अब्यूज, आपको कोई समझा रहा है दैट इज नॉट अब्यूज, इट इज लाइक साइमल्टेनियसली कंटिन्यूसली देयर यू आर गेटिंग लाइक सेक्सुअली मेंटली harassed, so that is you can say that yes you are abused, or emotionally harassed, someone is using the abusive words, then you can say that yes you are abused.
So in that case, if you're financially good, financially sound, so you can actually raise your child. आप अपने बच्चे को बड़ा कर सकते हो, आप उसकी बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हो. So the basic problem is that if you are financially good, financially strong, अगर आप अपना उस जब आप फाइनेंशियल की बात करते हो तो आप ये मत सोचो कि ये काम मेरे लिए छोटा है, ये काम बड़ा है. इट्स जस्ट व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, हर काम छोटा होता है. व्हेन यू डू समथिंग, आप धीरे धीरे लाइफ में बढ़ते जाते हो. हम भी जब पैदा होते हैं तो हम छोटे पैदा होते हैं, हम एकदम से बड़े पैदा नहीं होते. तो उसी तरह अगर हम किसी चीज़ को ओवरकम करना चाह रहे हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है, और फिर हम क्रिप करते रहते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट वॉट वी आर मेंट फॉर, सो यू आर रॉन्ग इन दैट केस. क्योंकि अगर आपको सच में ही अपने लिए कुछ करना है तो छोटी चीज़ों से शुरुआत करना कोई बड़ी बात नहीं है. If you have still any questions or any queries, you can definitely ask us. And please be happy, stay healthy, take care of your physical health along with your mental health.